औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर हुसैन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला। मिस्टर जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने इस केस को सुना। रिट पिटिशन नंबर 3145/2021। Petitioner challenged his detention under Section 3 of the Punjab Maintenance of Public Order Ordinance 1960 Ordinance through constitutional petition। पिटिशनर ने चैलेंज की उसकी नज़रबंदी जो उसकी की गई थी अंडर सेक्शन 3 पंजाब मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। आवाम के मफाद में अमन व अमान के हवाले से जो सेक्शन 3 है कानून का, उसके तहत जो डिटेंशन की गई थी पिटिशनर की, उसको उसने चैलेंज किया कि मुझे नज़रबंद क्यों किया गया। Whether a representation under section 3(6) of the ordinance can be considered to be an adequate remedy within the meaning of article 199 of the constitution so as to bar a person from filing a constitutional petition। क्या सेक्शन 3(6) जो है ऑर्डिनेंस का कैन बी कंसिडर्ड टू बी एन एडुकेट रेमेडी, इसके तहत एक रेमेडी ये ठीक है, या फिर उसको इस रेमेडी के होते हुए वो जो रिट पिटिशन में अगर कोई जाए तो उससे उसको रोका जा सकता है या नहीं। वेदर प्रिवेंटिव डिटेंशन मेक्स एन इनरोड ऑन द पर्सनल लिबर्टी ऑफ ए सिटीजन विदाउट द सेफगार्ड्स ऑफ ए फॉर्मल ट्रायल बिफोर ए जुडिशियल ट्रिब्यूनल। किसी को हिफाजती मामलात के हवाले से, अमन व अमान के हवाले से डिटेन करना, कैद करना, उसकी ज़ाती जो आज़ादी है, शख्सी आज़ादी है, उसको मजरूह करना किसी शहरी की बग़ैर उसका कोई ट्रायल किए, क्या ये दुरुस्त अमल है? इसको हम देखते हैं जी। इट वॉज ऑब्जर्व दैट व्हेन द ऑर्डर ऑफ एन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रिगार्डिंग डिटेंशन ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन इज चैलेंज अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, the High Court has limited jurisdiction because the remedy of judicial review cannot be treated as appeal or revision। हाई कोर्ट के पास जनाब बड़ी लिमिटेड jurisdiction है, because the remedy of judicial review cannot be treated as appeal or revision। जो judicial review की रेमेडी है उसको अपील और रिवीजन में ट्रीट नहीं किया जा सकता। द कोर्ट कैन नॉट substitute its discretion for that of the administrative authority। It can only see whether the order of detention is reasonable and objective। Moreover, with regard to preemptive detention, it was opined that the court has further to be satisfied in cases of preventive detention that the order of detention was made by authority prescribed in the law relating to preventive detention and that every requirement of the law relating to preventive detention had been strictly complied with। The edifice of satisfaction is to be built on the foundation of evidence because conjectural presumption cannot be equated with satisfaction। It is subjective assessment and there can be no objective satisfaction। Moreover, the ground of detention should not be vague and indefinite and should be comprehensive enough to enable the detainee to make representation against his detention to authority prescribed by law। उसने कहा जनाब लॉ में जो दी गई है ना, जो कानून है उस पे ही जो है वो करे। The Honorable Court, while relying on the case reported as PLD 2003 SC 442, held that the right of a person to a petition for habeas corpus could not be synopted। रोकी नहीं जा सकती हब्से बजा की पिटिशन किसी को देने से। It was observed while keeping in view the principle unicated in the August Supreme Court case cited supra that preventive detention must conform to the following criteria in order keep it within the bounds fixed by the Constitution and the relevant law inter alia। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जनाब अगर आप किसी को उस हफाजती तहवील में रहते हैं या वो अमन व अमा में सूरत प्रिवेंटिव मैयर के तौर पर उसको डिटेन करते हैं, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्राइटेरिया दिया है उसको लाजमन पूरा करना चाहिए, कंप्लाई करना चाहिए। द
the court must be satisfied that the material before the detaining authority was such that a reasonable person would be satisfied as to necessity for making the order of preventive detention. जो अथॉरिटी है उसके रीजनेबल पर्सन के पास, उसके ऑफिशियल्स के पास ऐसा मटेरियल होना चाहिए जिसकी वजह से वो उसको जो है नज़रबंद कर रहे हैं. द सेटिस्फेक्शन शुड बी एस्टेब्लिश विद रिगार्ड टू ईच ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन एंड इफ वन ऑफ द ग्राउंड इज शोन टू बी बैड, नॉन एग्जिस्टेंस or irrelevant, the whole order of detention would be rendered invalid. अगर उनमें से कोई एक भी ग्राउंड जो रखी गई है डिटेन करने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन के वाले से, अगर वो पूरी नहीं की गई तो उस सारा प्रोसेस जो है वो गलत साबित हो जाएगा. अब ये जो हमारे सामने केस मैंने आपके सामने ये आया है हमारे सामने कि बंदे को जो है ना वो गिरफ़्तार किया गया है और उसको नज़रबंद रखा हुआ है अमनो अमा के ऑर्डिनेंस के तहत. तो इस हवाले से जो लाहौर हाई कोर्ट ने इसको डिस्कस किया है कि दिस पिटिशन हैज़ नो मेरिट एंड इज़ देयर फॉर डिसमिस्ड. उन्होंने इसको डिसमिस कर दिया है और उसमें लिखा है Clinton Roster writes that there is no happiness without liberty, no liberty without self-government, no self-government without constitution, no constitutionalism without morality, and none of these great goods without stability and order. And in Nehindru Dutt Mohanjaro versus Emperor Air 1942 FC 22 said that the first and foremost fundamental duty of every government is the preservation of order, since order is the condition precedent to all civilization and the advance of human happiness. The provincial government's action against Hafiz Saad seeks to preserve peace. यानी हाफिज साद की जो गिरफ्तारी है इसमें उन्होंने कहा कि जनाब असल चीज़ ये है अमनो अमान जो है वो सिटीज़न का अगर डिस्टर्ब होता है तो फिर जो डिटेन किया गया है उस बंदे को वो ठीक किया गया है. तो ये हाफिज साद रिजवी के हवाले से थी. Brief facts giving rise to the petition are that the Deputy Inspector General Police Operation addressed letter number flan for detention of the petitioner's nephew Hafiz Saad Hussain Rizvi, son of Hafiz Khadam Hussain Rizvi, under section 3 of Punjab Maintenance of Police Order 1960. ये उनको जो नज़रबंद किया गया था उसके नज़रबंदी के खिलाफ दरख्वास्त उनके चचा ने दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इसको मुस्तरद कर दिया था कि ये क्योंकि अमनो अमा का मामला है और ये प्योरली जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है. और इसमें उन्होंने फिर वो क्लिंटन रोस्टर के हवाले से लिखा कि नो हैप्पीनेस विदाउट लिबर्टी, नो लिबर्टी विदाउट सेल्फ गवर्नमेंट, नो सेल्फ गवर्नमेंट विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, नो कॉन्स्टिट्यूशनल विदाउट मॉरलिटी, एंड नन ऑफ दीज ग्रेट गुड्स विदाउट स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर. ये थी जनाब जजमेंट जो मैंने आपके सामने पेश की. अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब पर अपना ख़ास करम फरमाए, हमें रिज़्क़ हराम से बचाए और हमें हक़ का साथ देने वाला बना दे. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.